Welcome everyone to this chapter number 1, real numbers of class 10 CBSE. Today we will be talking about Euclid's division lemma, and the definition of Euclid's division lemma is: for any two given positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r. Now you must be thinking, what is this? You haven't seen this, okay, and I don't understand this language also. So let us go back to some basic class, like in 6th class or 7th class we must have done this type of divisions, like 35 divided by 3. What will happen? It will go one time, you will get 3, 0 and 5, then again one time you will get 3 again, and remainder is 2. This type of division we all have done. Okay, now in this division there are certain numbers which we have named. Okay, like this is named as divisor, this is remainder, this is quotient, and this is called dividend. And we must have solved mixed numbers in 7th class, number like this. Okay, what do we do in this type of number? We multiply these two numbers, 3 into 5, 15, plus 4, 19. So we get 19 upon 5, where 5 is the divisor, 19 is the dividend. So it is just another way of writing these numbers in mixed fraction. Okay, let us write down these numbers in a mixed fraction, and let's see what happens. So in mixed fraction it will become 11, and 2 is the remainder and 3 is the divisor. This number can be written as this. Which number? 35 upon 3. This number can be written as this number. Now you are getting the point that in Euclid division lemma, Euclid has done one thing. He has given a definition to this type of number. What he has said, that this is quotient, this is remainder, this is divisor, and the whole thing will become equal to dividend. Dividend is what? Our number, our original number. Okay, let's now write this thing here in the form of Euclid division lemma. So Euclid said this number A, number 35, can be written as 3 into 11, 3 into 11 plus 2. Okay, now see, 3 is what? Divisor, Q is what? Quotient, and 2 is what? Remainder. So now we are getting dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Or according to Euclid, you can just change the letters D from A and this small d from B, just not to get confused. That's why they have given A and B in place of capital D and small d. Okay, now, so we have learned this equation means what? This is nothing new. You have already gone through these type of equations a lot of times in class 7th or 8th or 9th, and now you are in 10th. Again you will be solving these mixed fractions somewhere. You will come across this type of thing. This is a very normal equation, and everyone has already seen it somewhere back in time. And now this Euclid division lemma, let us understand what this definition says. So the definition says that if there is a number, which type of number? If there is a positive number 35 and there is another number 3, so I am giving you two numbers, 35 and 3, okay, which is A and B. I am giving you A and B. So for A and B there exist two unique numbers which are 2 and 11.
these two numbers uniquely exist, okay, such that this relation holds. Now अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं कि हमने दो नंबर दिए और उसके लिए दो नंबर यूनिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका इस चीज को इस तरीके से समझिए कि अगर आपको कोई आ करके दो नंबर दे दे, जैसे मैंने आपको दो नंबर, कोई सी भी दो नंबर दे दिया आपको, मैंने दिया 36 और मैंने दिया आपको 5, ठीक है, तो ये दो नंबर मैंने आपको दे दिए, ये आपके ए एंड बी हो गए। हमेशा याद रखिएगा कि ए बड़ा होता है, बी छोटा रखा जाएगा, ठीक है, तो ए और बी मैंने आपको दे दिए। तो इन दो नंबर के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें दो और नंबर मिलेंगे। देखो 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें पता है कि 7 टाइम्स ये जाएगा 35 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखो हमें दो नंबर और मिल रहे हैं, 7 और 1, और डिवीजन ऐसे हो गया, ठीक है। तो 36 और 5 अगर दे रहा हूं मैं तो 7 और 1 आपको मिलेंगे और ये नंबर कहलाएंगे Q एंड R, कोशेंट एंड रिमाइंडर। और आप कभी भी 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे यहां करें, चाहे अमेरिका में करें, चाहे मून पे जाके करें और चाहे मार्स पे जाके करें, आपको ये 36 नंबर जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यही कोशेंट 7 और यही रिमाइंडर 1 देगा, कोई और नंबर यहां नहीं आ सकता है। इसी वर्ड का मतलब है यूनिक होल नंबर। ये यूनिक होल नंबर है 7 और 1। ये नंबर नहीं चेंज हो सकते, ये नंबर तब तक नहीं चेंज हो सकते जब तक ये 36 और 5 को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए हम 5 की जगह आपको 4 दे दें या हम आपको 7 दे दें, मान लीजिए इसकी जगह हम आपको 7 दे दें, तब ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये दो नंबर अगर आपके फिक्स हैं, इफ आई एम गिविंग यू 36 and 5, then you will always have 7 and 1 as the quotient and remainder. So now let us again read this Euclid division lemma and understand what it is saying. For any two given positive integers, a and b, there exist unique whole numbers Q and R। यूनिक बता दिया मैंने आपको कि ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, जब तक ये और ये नहीं चेंज होंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो आप 7th और 8th क्लास में लिखते थे मिक्स नंबर टाइप का, वो ये यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है? A = BQ + R, या फिर 35, या फिर इसको लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 36 = 7 × 5 और n+1। जबकि ये A है, ये आपका क्या है? Q है, ये आपका क्या है? B है, और ये क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपको ये एक छोटा सा फैक्ट पता चल गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम लोग एक छोटी सी चीज, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड, और ये क्वेश्चन है HCF फाइंड करने का। ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। फाइंड HCF of 1032 and 272। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को, अच्छा आपको फाइंड क्या करना है? HCF फाइंड करना है। चलो पहले ये देख लेते हैं HCF होता क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं HCF और LCM के बारे में आपको डिटेल में एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि HCF LCM होते क्या हैं। फिलहाल हम लोग HCF को नॉर्मली ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इन दोनों में कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और वो सबसे बड़ा नंबर हो, इसमें और इसमें। अच्छा देखो, दोनों में 2 डिवाइड कर देगा, ठीक है, इसको भी 2 डिवाइड कर देगा, इसको भी 2 डिवाइड कर देगा, तो क्या 2 HCF है? आप ही कह सकते हैं 2 HCF है? नहीं,
HCF का क्या मतलब है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 कॉमन फैक्टर है माना, लेकिन 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये आप नहीं कह सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में हाईएस्ट नंबर वो कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, उसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज थी। अब अगर आप HCF के बारे में और जानना चाहते हैं तो आगे के लेक्चर्स देखिएगा। फिलहाल हम लोग ये करने जा रहे हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे बाई सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ओके, तो हमेशा याद रखिए बड़े नंबर को आपको रखना है डिवीजन के अंदर, छोटे नंबर को आपको रखना है डिवीजन के बाहर। ये 3 टाइम्स जाएगा, फिर 816 आ जाएगा। 816 से जब रिमाइंडर निकलेगा तो आपका 216 आ जाएगा। आप देखिए क्या करना है आपको, ये जो 216 यहाँ पे लिखा हुआ है इससे इसको आप डिवाइजर बना लेंगे। इस डिवाइजर से आप डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर को, यहाँ पे जो लिख दिया है मैंने, तो इसको उठा के रख देना है अंदर और इससे डिवाइड करना है। 1 टाइम जाएगा 216, रिमाइंडर बचेगा 56। अब फिर से जो पहले वाला डिवाइजर था आपका 216 उसको अंदर रख देंगे और 56 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 168 आएगा, 48 रिमाइंडर बचेगा। फिर ये जो आपका डिवाइजर था ये अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये डिवाइड होगा 48 से, 1 टाइम जाएगा, ये बचेगा 8। और अब जो आपका डिवाइजर था यहाँ पे वो अंदर आ जाएगा 48, ये 48 ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स जाएगा। 8 6 जा 48, ये और कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो यहां पे जो लास्ट में जब 0 आ जाए, जब लास्ट में 0 आ जाए तो ये वाला जो आपका नंबर होता है डिवाइजर, इसको हम लोग बोल देते हैं HCF। लास्ट में जो नंबर डिवाइजर बनता है उस वाले डिवीजन में जिसमें रिमाइंडर 0 हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे HCF। तो HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 8। ओके, तो ये आपका HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का। इस मेथड को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अब आप ऐसा करिएगा, कुछ नंबर्स लीजिएगा और सक्सेसिव डिवीजन मेथड से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा।